स्टूडेंट वेलकम्स यू। मैं रोहिता सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, वी आर प्रोसीडिंग विथ थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शंस। ठीक है, और इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 19, वी हैव स्टार्टेड द डिफरेंट कनेक्शंस ऑफ थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर एंड वी हैव डिस्कस्ड द स्टार स्टार एंड डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, so many things we have explained in that type of connection. ठीक है, what is the connection diagram, relationship between line quantities and phase quantities of the primary and secondaries, phasor diagram। हमने ये भी देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच कितनी फेज शिफ्ट आती है। तो आपने देखा था स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में जो फेज शिफ्ट मिलती है हमें वो 0 डिग्री की मिलती है, मतलब प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब हम पैरेलल ऑपरेशन पढ़ते हैं तो वहां पर हमें दो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का जो पैरेलल में रखना होता है तो हमें चूज करना पड़ता है कि कौन सा हमारा ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में रखा जा सकता है। उसके लिए हमें देखना पड़ते हैं ऐसे दो ट्रांसफॉर्मर जिनकी फेज शिफ्ट सेम हो। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कई बार ईएससी और गेट एग्जाम और उससे भी अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछी गई है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द लेक्चर। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 20, दैट इज स्टार डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो प्राइमरीज होंगी दे विल बी कनेक्टेड इन स्टार फैशन एंड सेकेंडरीज विल बी कनेक्टेड इन डेल्टा फैशन। सो सिमिलर टू प्रीवियस लेक्चर, लेट्स कंसीडर थ्री सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर लाइक दैट। These are the primaries, three primaries of three single phase transformer like that. Okay, and these are the secondaries. These are secondaries. Okay, mark the terminal here. Suppose this is A1 and this is A2. This is B1 and this is B2. This is C1 and this is C2. Okay, now similarly in the secondary side, these are the codes of the individual transformer. In the secondary, suppose this terminal is small a1, that is A2, this is B1 and this is B2 and this is C1 and this is C2. See here. Now we will provide the dot. So the dot is here in the primary and this is the dot in secondary and these are the dots. So see here we have to connect the primary in star. So मैंने आपको बताया था स्टार में कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, जो सिमिलर एंड्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो या तो A1 B1 और C1 को आपस में कनेक्ट करेंगे, A2 B2 और C2 को सप्लाई देंगे, या A2 B2 और C2 को आप आपस में कनेक्ट करेंगे और A1 B1 और C1 पर आप सप्लाई देंगे। तो here we are connecting A2 with B2 and C2. These are the similar ends connected together and the supply terminal will be provided with the help of A1 B1 and C1. See here, so these are supply terminals. Okay, so these are connected in star and the secondaries are connected in delta. So in case of delta, dissimilar ends are connected together. So here A2 will be connected with B1, so A2 will be connected with B1, B2 will be connected with C1. ठीक है, and C2 will be connected with A1. It will be connected with A1 like that. And load terminals will be, this will be A1, this will be B1 and this will be C1. These are the load terminals. This is A1, B1 and this is C1. These are load terminals. Okay, so in this way we can connect these two primaries and secondaries in star and delta connection. Now see here, the line voltage of primary winding will be between A and B, so it will be V1L. You see in the previous lecture, this is the phase voltage, this is V1P. Okay, similarly this is the line current of primary, this is I1L, and this is the phase current of primary, that is I1P. Okay, similarly we can see here, this is the phase voltage of secondary current, so the secondary winding, this is V2P and this is the phase current, this is I2P, and
similarly this is the line voltage, this is V2L, this is V2L, and this is I2L. Okay, so these are the primary line quantities and secondary line quantities and phase quantities. Now see the relationship between these primary and secondary line quantities and phase quantities. So the primary is connected in star and secondary is connected in delta. See here, this is load terminals, So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी इज कनेक्टेड इन स्टार एंड यू नो इन केस ऑफ स्टार V1L is equal to √3 times of V1P, that is the line voltage is equal to √3 times of phase voltage, and line current IL1 will be equal to phase current, that is I1P. Similarly in case of delta, the secondary line current will be equal to secondary phase current, but secondary line current will be equal to √3 times of secondary phase current, that is I2. We have to calculate the transformation ratio. So we will put V1P upon V2P is equal to K. Now V1P is equal to, this is V1L upon √3 divided by V2L. V2P is equal to V2L is equal to K. So V1L upon V2L will be equal to, this will be √3 times of K. See here. So this is the transformation ratio for line values and this is the transformation ratio for phase values. V1P upon V2P is equal to K and V1L upon V2L is equal to √3 times of K. Okay. Now see this transformation ratio for current. For current we know that is I1P upon I2P is equal to 1 upon K. See here, I1P is equal to I1L, so it is I1L upon I2P is equal to I2L divided by √3 is equal to 1 upon K. So it will be √3 I1L upon I2L is equal to 1 upon K. So this √3 will be given in denominator in this side, it will be √3K. So this is the transformation ratio for line current and this is the transformation ratio for phase current. Okay, so these are the relationship between line quantities and phase quantities of primary and secondary. Now let's discuss the phasor diagram. So in star delta connection you know that as secondary is connected in delta, it is connected in delta. So line voltage is equal to VL is equal to BP. ठीक है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू Vp, यानी जो हमें लाइन वोल्टेज मिल रहा है वो केवल फेज वोल्टेज के बराबर मिल रहा है, मतलब आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है हमें लो मिल रहा है. ठीक है, इसका मतलब प्राइमरी को जो हम वोल्टेज दे रहे थे, प्राइमरी इज कनेक्टेड इन स्टार, तो स्टार को हमने लाइन वोल्टेज दिया. ठीक है ना, उसके बाद दैट इज कन्वर्टेड टू फेज वोल्टेज. फेज वोल्टेज आपका स्टेप डाउन हुआ बिकॉज वी आर यूजिंग हाई वोल्टेज साइड एज प्राइमरी साइड एंड लो वोल्टेज साइड एज सेकेंडरी साइड. That's why in the output we are getting just step down voltage. Step down voltage जो हमें मिल रहा है वाइंडिंग में वही हमें आउटपुट पर मिल रहा है. सो इस ट्रांसफॉर्मर, ये वाला जो कनेक्शन हम यूज करते हैं, ये कनेक्शन यूज करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए. सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज यूज्ड, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर to step down the voltage, ठीक है. मीन्स अगर यही साइड हमारी स्टार में होती तो देखिएगा VL कितना मिलता, हमें √3 टाइम्स मिलता, मीन्स बहुत ज्यादा वोल्टेज मिलता, तो उस केस में हमारा वोल्टेज स्टेप अप हो जाता. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें वोल्टेज क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, इसीलिए इन
इस टाइप के कनेक्शन को हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं, तो वी यूज स्टार डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फेजर डायग्राम। So we will see the phasor diagram. Phasor diagram. Phasor diagram के लिए वही है कि हमारे पास suppose these are the three windings, primary windings like that. These are three primary windings with terminal A1, A2. This is B1, this is B2, and this is C1, and this is C2. These are the dot provides here. These are the dots. ठीक है, now these windings are connected in star. That's why either we can connect A2, B2, C2 together and we can provide the supply at terminal A1, B1 and C1, or in other fashion we can connect A1, B1 and C1 together and supply terminal will be A2, B2 and C2. ठीक है, so there is no problem, you can either connect A1, B1 or C1 or A2, B2 or C2. Say here we are connecting A2, B2 and C2 together to form the star connection like that. And suppose this is the neutral point. This is neutral point. Okay. Now in the secondary side also we have three windings. These are three windings like that. These are terminal A1. This is A2. This is B1 and this is B2. This is C1 and this is C2. The dots are connected here. This. ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग है हमारी ये डेल्टा में कनेक्ट है। अब डेल्टा में क्या कर सकते हैं, डेल्टा में हमेशा डिसिमिलर एंड्स हम कनेक्ट करते हैं। तो A2 को B1 से कनेक्ट करेंगे, B2 को C1 से कनेक्ट करेंगे और C2 को A1 से। एक कन्फिगरेशन तो ये है। दूसरा कन्फिगरेशन क्या हो सकता है, A1 को आप B2 से कनेक्ट कर दीजिए, B1 को C2 से कनेक्ट कर दीजिए और C1 को A2 से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और तो कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन आप यूज कर सकते हैं। दे आर मैनी कॉन्फ़िगरेशन। आप डॉट यहाँ ना लगाकर डॉट का आप A2 पर लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं B2 पर और C2 पर। सो देयर आर मैनी कॉन्फ़िगरेशन एंड दीज कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन वी विल स्टडी इन फेजर ग्रुप। आगे जो टॉपिक हमारा होगा आफ्टर द कनेक्शन वी विल स्टडी द डिफरेंट फेजर ग्रुप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो उसमें हम डिफरेंट कनेक्शन लेंगे। अभी फिलहाल हम जो कनेक्शन ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग A2 विद B1, B2 विद C1 एंड C2 विद A1. The C2 is connected with A1 like that. This we are using this type of connection, and A1, B1 and C1 are the load terminals. These are load terminals. Okay. अब स्टूडेंट्स यहाँ दो चीज आपको ध्यान रखनी है, पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था। क्योंकि देखिएगा यहाँ भी डॉट किसके पास है, A1 टर्मिनल्स के पास है, यहाँ भी डॉट A1 टर्मिनल्स के पास है। इसका मतलब जो वोल्टेज होगा A1 और A2 के बीच, मतलब प्राइमरी में जो A1 और A2 के बीच वोल्टेज होगा वो सेम फेज में होगा विद द वोल्टेज बिटवीन A1 एंड A2 इन सेकेंडरी वाइंडिंग। सो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। ऐसे ही वाइंडिंग बी के जो वोल्टेज होंगे, यहाँ पर भी सेम डॉट आप यूज कर रहे हो प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, तो ये वोल्टेज भी आपके सेम फेज में होंगे। ऐसे ही सी फेज के वोल्टेज भी आपके सेम फेज में होंगे। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी मैंने ये कहा था कि इन केस ऑफ डेल्टा टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज वी क्रिएट आर्टिफिशियल न्यूट्रल। ठीक है, तो हम फेज वोल्टेज निकालने के लिए एक आर्टिफिशियल न्यूट्रल क्रिएट करते हैं। तो उस न्यूट्रल देखिएगा इस तरह का, मान लीजिए आपके पास डेल्टा, दिस इज डेल्टा। ठीक, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, तो अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे ये वोल्टेज चाहिए, इस फेज का वोल्टेज चाहिए न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर मैं एक आर्टिफिशियल न्यूट्रल क्रिएट करता हूं, दिस इज एन। तो यहां पर इस एन को मैं कनेक्ट करता हूं किससे, ए से। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर हम A1 लेंगे या A2 लेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। हमेशा यहाँ पर हम उस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में देखते हैं फेज वोल्टेज जो टर्मिनल हमारा या तो सप्लाई से कनेक्ट है या फिर लोड से कनेक्ट है। यहाँ पर हमारा देखिएगा जो लोड से टर्मिनल कनेक्ट है दैट इज A1, दैट इज नॉट A2। सो यहाँ पर जो फेज वोल्टेज लेंगे हम किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, A1 के। सो दिस इज A1। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। तो नाउ लेट्स ड्रा द फेजर डायग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलर जो हमने पिछले लेक्चर में किया था कि हमारे पास पहले एक वोल्टेज होगा दैट विल बी V A1
A2. This is the primary voltage of phase A. ठीक है, this terminal is A1 and this terminal is A2. Now A2 is connected to B2, so it is connected to B2, and B2 is connected to C2. Means these are the three terminals. So this is the voltage of phase A. Now the voltage of phase B will be at 120 degree. So if this terminal is B2, then this terminal will be B1. और मैंने कहा था एरो हेड हमेशा किधर रखना है, जिधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, मतलब जिधर डॉट होगा. Similarly, this will be C1. So this voltage will be VB1, B2, and this voltage will be VC1, C2. ठीक है. So this is the phasor diagram for star connection. ठीक. Now अब हमें phasor diagram ड्रा करना है किसके लिए, डेल्टा के लिए. तो ध्यान से देखिएगा, जो वोल्टेज होगा हमारा VA1A2 that will be in same phase with V capital A1A2. मीन्स इसके क्या होगा, सेम फेज में होगा. तो यहाँ पर हमने ड्रा किया ये, दिस इज VA1A2. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. इसको मैं मान लेता हूं, सपोज दिस टर्मिनल इज A1 एंड दिस टर्मिनल इज A2. ठीक. नाउ A2 इज कनेक्टेड विद B1. A2 इज कनेक्टेड विद B1. सो A2 टर्मिनल के साथ ही क्या होगा, आपका B1 टर्मिनल होगा. अब जो B1 और B2 का वोल्टेज है दैट विल बी इन सेम फेज विद कैपिटल B1 एंड B2. सो कैपिटल B1 और B2 की डायरेक्शन क्या है, ये है. सो दिस फेजर विल बी पैरेलल टू B1 एंड B2. सो दिस विल बी लाइक दैट. सो दिस टर्मिनल इज B1, सो दिस टर्मिनल विल बी इक्वल टू B2 लाइक दैट. ठीक है. सो दिस विल बी पैरेलल विद दिस फेजर and this will be parallel with this phasor. Now the B2 terminal is connected with C1, so here this terminal will be C1. Okay, and the voltage between C1 and C2 will be in same phase with the voltage between capital C1 and C2. So capital C1 and C2 voltage क्या है आपका, इस डायरेक्शन में है. इसका मतलब ये वाला जो फेजर होगा वो इस फेजर के पैरेलल होगा like that, and arrowhead will be towards C1. So this will be parallel to this. तो इस तरह से आपका आता है, दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम. नाउ हमें देखना है कि जो प्राइमरी का वोल्टेज है और जो सेकेंडरी का वोल्टेज है उनके बीच क्या डिफरेंस है. तो हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल न्यूट्रल क्रिएट करते हैं. दिस इज द आर्टिफिशियल न्यूट्रल. हमें फेज ए का देखना है, दिस इज स्मॉल एन. तो किससे कनेक्ट करेंगे हम, A1 से कनेक्ट करेंगे या A2 से. देखिएगा A1 is connected to load terminal. That's why we will see the phase voltage with respect to A1, not with respect to A2, because A2 is not connected with load. So this is VA. So आप देख सकते हो कि अगर दोनों के बीच हम फेज डिफरेंस देखते हैं तो हमारे पास ये टर्मिनल आएगा, दिस विल बी VA1 A2. ठीक है, और ये जो वोल्टेज होगा हमारा, दिस विल बी VAN. ठीक है, और ये जो एंगल होगा आपका, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. यू कैन राइट हियर दिस इज 30 डिग्री. सो दिस इज द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज द वोल्टेज फेज वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग. ठीक है. सो आप देख सकते हैं, अगर रोटेशन हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो आप देख सकते हो कि जो प्राइमरी का आपका फेज वोल्टेज है वो लीड कर रहा है सेकेंडरी के फेज वोल्टेज से. ठीक है, और कितने एंगल से लीड कर रहा है, 30 डिग्री से. तो इसको हम लिख सकते हैं द फेज वोल्टेज सॉरी इसको ऊपर लिखते हैं. ठीक है, इसको रब कर देते हैं यहां पर, बिकॉज इट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्राइमरी voltage leads the secondary voltage by 30 डिग्री. ठीक है, मतलब जो फेज शिफ्ट मिल रही है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कितनी मिल रही है हमें, फेज शिफ्ट ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, तो मुझे बताइएगा डियर स्टूडेंट, अभी हमने देखा था, हमने पढ़ा था स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, और यहां पर हमने पढ़ा दिस इज स्टार डेल्टा. ठीक है, तो आपने देखा था स्टार स्टार के केस में कितनी फेज शिफ्ट मिल रही थी आपको, 0 डिग्री. डेल्टा डेल्टा में कितनी फेज शिफ्ट मिल रही थी, 0 डिग्री. स्टार डेल्टा में कितनी मिल रही है, 30 डिग्री. ठीक है,
सो आप देख सकते हो कि ये जो दोनों कनेक्शन है ये एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फेज शिफ्ट कितनी मिल रही दोनों में 0 डिग्री, यहाँ पर फेज शिफ्ट कितनी मिल रही है आपको 30 डिग्री, मतलब ये इस ग्रुप में नहीं होगा। जब इस ग्रुप में नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टार स्टार कनेक्शन के को स्टार डेल्टा के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दें। इट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज ओनली पॉसिबल दैट कनेक्शन है द सेम फेज शिफ्ट। स्टार स्टार कनेक्शन को आप पैरेलल में लगा सकते हैं डेल्टा डेल्टा के साथ, डेल्टा डेल्टा को लगा सकते हैं स्टार स्टार के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि डेल्टा डेल्टा या स्टार स्टार को आप स्टार डेल्टा के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि फेज शिफ्ट आपकी सेम होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा फेजर डायग्राम ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन एंड द फेज शिफ्ट, रेस्पेक्टिव फेज शिफ्ट इज 30 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। अगर एडवांटेजेस की हम बात करें स्टार डेल्टा की, देखिएगा पहली चीज तो हमें डेल्टा कनेक्शन मिल रहा है, सेकेंडरी में डेल्टा मिल रहा है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर डेल्टा कनेक्शन आपको मिलता है, चाहे वो प्राइमरी में मिलता है चाहे सेकेंडरी में, तो डेल्टा कनेक्शन प्रोवाइड्स द पाथ फॉर थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। और जब उसको फ्लो होने के लिए पाथ मिल जाएगा, फिर दैट विल नॉट disturb the magnetic flux waveform and induced EMF waveform, means the magnetic flux and induced EMF waveform will be perfectly sinusoidal, ठीक है। सो इसके जो एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो पहला एडवांटेज इसका होता है एडवांटेजेस। द फर्स्ट एडवांटेज इज नो प्रॉब्लम ऑफ थर्ड harmonics of magnetizing current due to delta connected secondary. That's why flux and induced EMF waves are perfectly sinusoidal, ठीक है। सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि यहाँ पर पाथ मिल जाता है थर्ड हार्मोनिक मैग्नेटाइजिंग करंट को फ्लो होने के लिए, जिससे वो मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ के वेव फॉर्म को डिस्टर्ब नहीं करती है। सेकंड थिंग यहाँ पर ये है, देखिएगा यहाँ पर चूंकि वन ऑफ बाइंडिंग इज कनेक्टेड इन स्टार, since primary is connected in star, और आपको पता है स्टार के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ स्टार द फेज वोल्टेज Vp इज इक्वल टू VL अपॉन √3, मतलब बाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी ओनली VL डिवाइडेड बाय √3, मतलब अक्रॉस द बाइंडिंग। और जब बाइंडिंग के अक्रॉस आपका वोल्टेज कम एम्पियर होगा, इसका मतलब जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी बाइंडिंग के लिए वो कम होगी, जिससे कि आपकी कॉस्ट में सेविंग होगी, ठीक है। सो ड्यू टू लो बाइंडिंग वोल्टेज लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड। So this is important point, इंसुलेशन कम रिक्वायर्ड होता है, इसलिए कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टार डेल्टा कनेक्शन। नाउ द नेक्स्ट कनेक्शन वी विल डिस्कस, दैट इज डेल्टा स्टार कनेक्शन। नेक्स्ट कनेक्शन इज डेल्टा स्टार कनेक्शन, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी ड्रा द 3 प्राइमरी वाइंडिंग एंड 3 सेकेंडरी वाइंडिंग। नाउ वी हैव टू कनेक्ट द प्राइमरी इन स्टार एंड सेकेंडरी इन डेल्टा। सो टू कनेक्ट द प्राइमरी इन डेल्टा, we will connect A2 will be connected with B1, P similar ends will be connected, B2 will be connected with C1 and C2 will be connected with A1, like that. C1 will be connected with A1, and these are the supply terminals, that is at A1, next supply terminal as B1 and third terminal at C1. These are supply terminals.
terminals. Okay. Similarly, the secondary winding is connected in star. So similar ends will be connected together. A2 will be connected to B2 and with C2. And the load terminals will be A1, this is B1 and this is C. Okay. So already we have discussed what is the line voltage, what is the phase voltage. So directly now we will calculate the different relationship between the line quantities and phase quantities of primary and secondaries. So see here, we have primaries in delta and secondaries in star. So अगर primary line voltage की बात करते हैं, this is the case of delta. So V1L will be equal to V1P because line voltage and phase voltage are same. But the primary line current will be equal to √3 times of primary phase current. Similarly, in case of star, V2L will be equal to V2P. Sorry, this is √3 times of V2P, and I2L will be equal to, this is I2P. This is the case of star connection. ठीक. So transformation ratio V1P upon V2P is equal to K. And now V1P is equal to, this is V1L upon V2P is equal to V2L divided by √3 is equal to K. So V1L upon V2L will be equal to K upon √3. Okay. So it will be K upon √3. Now I1P upon I2P is equal to 1 upon K. I1P upon I2P is equal to 1 upon K. I1P is equal to how much? It is I1L upon √3 upon I2P is equal to I2L. So we can write this is I2L is equal to 1 upon K. So I1L upon I2L will be equal to √3 divided by K. This is the transformation ratio. These are very important relations and they are used to calculate the different parameters in numerical problems. So in that way we have calculated different parameters. Now see here, the secondary is connected in star. So in case of star, the line voltage is equal to √3 times of V2P. Okay? Means we are getting the increased line voltage because it is √3 times of phase voltage. So this type of connection is used in case of step of transformer. So we can write that as secondary is connected in star, the secondary is connected in star where VL is equal to √3 times of VP. So here we are getting the increased voltage. So this type of connection is used for the transformers, for the step of transformer used near the generating units, जहां पर जनरेशन होता है, जनरेशन आपको पता है लो वोल्टेज पर होता है और उसको ट्रांसमिट करने के लिए हमें वोल्टेज को स्टेप अप करना होता है. तो उस तरह की एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, डेल्टा स्टार कनेक्शन का यूज करते हैं. ठीक. नाउ वी विल डिस्कस द फेजर डायग्राम. So this diagram is for draw the phasor diagram. So you can see here already, as we have discussed, these are the three coils representing the three primary winding and these are the three coils representing the three secondary windings. So here these are A1, A2, B1, B2, C1, C2. You have already discussed. Okay. So यहाँ पर देखिएगा primary is connected in delta, means the primary is connected in delta. So A2 will be connected with B1. These similar ends will be connected. Similarly, B2 will be connected with C1 and C2 will be connected with A1. Like that. It will be connected with A1. C2 will be connected with A1. And A1, B1 and C1 are the supply terminals. These are supply terminals. Okay. Similarly, the secondary winding we have to connect it in star. So A2, B2 and C2 are connected with together and this is the neutral point. Okay. And
these are the load terminals. These are load terminals. लोड टर्मिनल्स, ठीक है। तो ऑलरेडी जैसा हमने डिस्कस किया है कि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज एग्जैक्टली सेम फेज में होंगे। सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं स्टार के लिए। तो इन केस ऑफ स्टार दिस विल बी द वोल्टेज VA1 A2, दिस विल बी A1 एंड दिस विल बी A2, ठीक है। नाउ A2 B2 एंड C2 आर कनेक्टेड टुगेदर, सो वोल्टेज V1 B2 will be at 120 degree. So if this is V2, this will be V1. So this voltage will be V1 and this is V2. And C will be displaced at 240 degree. So this terminal is C2. So this terminal will be C1 and this will be VC1 C2. And this angle is 120 degree. Okay. Now see here we have to draw the primary voltage, that is VA1 A2. Now VA1 A2 will be in same phase with small VA1 A2 because these are exactly in same phase. So let's draw. This is VA1 A2. Arrowhead terminal will be A1 and this terminal will be A2. See here. Now A2 is connected to B1, so this point will also be B1. Now we have to draw B1 B2. So B1 B2, this line is parallel to this line. So B1 B2 will be parallel to this line. So it is parallel to that. So it will be like that. So B1, sorry, this is capital A1 A2. Sorry, this is capital A1 A2. This point is A1 and this point is A2 and this point is B1. ठीक है? So this is B1. So when this is B1, this will be B2. Now B2 is connected with C1, so this is also C1 point. Now we have to draw the voltage VC1 C2. So voltage VC1 and C2 will be in same phase with this, so it will be parallel to this line like that. And this is C1 terminal, so it will carry the arrowhead, and this is C2 terminal. Okay. Now we have to determine the phase voltage. That's why we will create an artificial neutral, that is N. Now N को किसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, A1 के या A2 के? हम देखेंगे A1 के टर्मिनल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि A1 इज कनेक्टेड टू सप्लाई. सो दिस इज VAN. दिस वोल्टेज विल बी VAN. तो अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो यू कैन सी हियर दिस इज द VA1 A2. दिस इज द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ फेज A, एंड दिस इज again this is capital AN, this is capital AN and this is N. ठीक है? सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि this is line represent the, this is VAN, this is the phase voltage of primary winding and this angle is 30 degree. Again you can see that we are getting a phase shift of 30 degree, but here difference is that in previous case, that is in case of star delta, the primary voltage leads the secondary voltage by 30 degree, but here in that case the primary voltage lags the secondary voltage by 30 degree. Okay, so this is difference between delta star and star delta. So we can write in this case the primary voltage lags the secondary voltage by 30. ठीक है? सो कीप इन माइंड इन स्टार डेल्टा वहां पर भी 30 डिग्री मिल रही थी, डेल्टा स्टार में भी 30 डिग्री मिल रही थी, लेकिन डिफरेंस ये है कि इन केस ऑफ स्टार डेल्टा द प्राइमरी वोल्टेज लीड्स the secondary voltage by 30 degree, but here the primary voltage lags the secondary voltage by 30 degree. ठीक है? अल्टीमेटली फेज शिफ्ट आपको कितनी मिल रही है, 30 डिग्री. फेज शिफ्ट इज 30 डिग्री. ठीक है? सो अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो सेम एडवांटेज हैं जो एडवांटेज आपके स्टार डेल्टा के थे. ठीक है? सो एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं, एडवांटेजेस तो सेम as that of स्टार डेल्टा. ठीक है? क्योंकि वहां पर भी एक वाइंडिंग आपकी स्टार में थी, एक डेल्टा में थी,
ठीक है, यहाँ भी ये वाइंडिंग आपकी स्टार में और एक डेल्टा में, ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा, आप बात चल रही थी पैरेलल ऑपरेशन की, तो हमारे पास चार तरह के कनेक्शन हुए, एक स्टार स्टार हुआ, एक डेल्टा डेल्टा हुआ, एक स्टार डेल्टा हुआ और एक डेल्टा स्टार। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट इन तरह के क्वेश्चन को रटते हैं, ठीक है। सो देयर इज नो नीड, ठीक है। आप देख सकते हो, अगर स्टार स्टार की बात करते हैं तो स्टार स्टार में कितना फेज शिफ्ट मिल रहा है हमें, 0 डिग्री। डेल्टा डेल्टा की बात करते हैं तो फेज शिफ्ट कितना मिल रहा है, 0 डिग्री। दिस इज फेज शिफ्ट, दिस इज फेज शिफ्ट। और स्टार डेल्टा में हमें कितना मिल रहा है, 30 डिग्री। डेल्टा स्टार में कितना मिल रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो द इंपॉर्टेंट कंडीशन टू ऑपरेट टू ट्रांसफॉर्मर इन पैरेलल दैट द फेज शिफ्ट शुड बी सेम। सो आप क्या कर सकते हो, स्टार स्टार को डेल्टा डेल्टा के साथ ऑपरेट करा सकते हो, डेल्टा डेल्टा को स्टार स्टार के साथ, क्योंकि फेज शिफ्ट आपकी सेम है, ठीक है। इसी तरह से स्टार डेल्टा को डेल्टा स्टार के साथ ऑपरेट करा सकते हो, डेल्टा स्टार को स्टार डेल्टा के साथ करा सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो कि डेल्टा डेल्टा को स्टार डेल्टा के साथ ऑपरेट करा दें, इट इज नॉट पॉसिबल। आप चाहो कि डेल्टा डेल्टा को डेल्टा स्टार के साथ करा दें, इट इज नॉट पॉसिबल। आप चाहो कि स्टार स्टार को स्टार डेल्टा के साथ करा दें, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। और स्टार स्टार को आप डेल्टा स्टार के साथ, दिस इज नॉट द केस, ठीक है। सो इस तरह से आप देख सकते हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप तुरंत बता सकते हो एग्जैक्ट आंसर। So dear student, in two lectures, that is lecture number 19 and lecture number 20, we have covered the different connections of transformer, that is star star, delta delta, delta star and star delta, ठीक है। In the next lecture we will discuss a very important connection that is called as the VV connection or open delta connection. After that we will discuss Scott connection, and in the last of connection we will discuss some numerical problems that will be based on स्टार डेल्टा, डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्कॉट कनेक्शन एंड ओपन डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और आपने अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। थैंक यू।